ایک بندے سے جادو اتار کے راستے میں پھینک دیتے ہیں، جادو کی چادر انسان کے جسم کے اوپر لپٹ جاتی ہے۔ یہ کنڈارا کیسے نکالتے ہیں اور یہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے کچن کے غلط استعمال کی وجہ سے بھی آپ کے اوپر غلط اثرات پڑ سکتے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے بھی شیاطین گھر میں اندر داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، عورتوں کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، منہ کے اوپر دانے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسا بندہ خود جادو کا چیلا ہوتا ہے، وہ شیاطین کا ایک ہتھیارہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو ایک بہترین حل بتا دیتا ہوں۔ ہر قسم کے جادو کے توڑ، بندش کی یقینی کار اور مستند قرآنی عملیات و وظائف کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل پیر محمد شعیب بلوچ کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے جادو کی تباہی، کچھ وہ فیصلے جو غلط طریقے سے کیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے انسان کی زندگی تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بظاہر انسان کو کچھ فیصلے کو انسان ایک معمولی فیصلہ سمجھ رہا ہوتا ہے، روٹین وائز سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ انسان کی زندگی کو ایک بند گلی کے اندر دھکیل دیتے ہیں، جس سے انسان بعض دفعہ باہر نکلنے کے لیے بڑے جتن کرتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ نکل نہیں سکتا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سے ایسے فیصلے ہیں جن کی وجہ سے جادو کی چادر انسان کے جسم کے اوپر لپٹ جاتی ہے۔ بعض دفعہ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر راستے کے اندر پڑی ہوئی چیز کو چھیڑ بیٹھتا ہے۔ راستے میں بعض دفعہ جادو پڑے ہوتے ہیں، اور بعض پرانے معالجین جو سفلی علم کرتے ہیں اور سفل علم کے ذریعے جادو کی کاٹ کرتے ہیں، تو وہ کچھ ایسے طریقے کرتے ہیں کہ ایک بندے سے جادو اتار کے راستے میں پھینک دیتے ہیں، کیونکہ روحانی علوم کے ذریعے تو جادو کی کاٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ جادو بالکل سرے سے ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو سفلی علم کرتے ہیں، جو جادو کے ذریعے جادو کی کاٹ کرتے ہیں، وہ جادو کو سرے سے ختم نہیں کر سکتے، بلکہ جادو کو اتار کے انہوں نے راستے میں پھینکنا ہوتا ہے، جن کو دیہی علاقوں میں، دیہی علاقہ جات میں ایک لینگویج بولی جاتی ہے جس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ کنڈھارا نکالنا۔ یہ کنڈھارا کیسے نکالتے ہیں اور یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس مریض کو کچھ پڑھنے کے لیے دے دیتے ہیں، کچھ خود پڑھائی کرتے ہیں، کچھ پینے کے لیے تعویذ وغیرہ دے دیتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں اتنی باجرے کے دانے لے لیں، یا اتنے سرسوں کے دانے لے لیں، یا اتنا فلاں کپڑا لے لیں، یا فلاں فلاں چیز لے کر ہمیں دے دیں۔ اب وہ اس کے سر سے اتارتے ہیں اور وہ مخصوص پڑھائی کرتے رہتے ہیں، تو اس کے جسم کے اندر جو جادو کے اثرات ہوتے ہیں وہ نکال کر ان چیزوں کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ راستے میں ان کو پھر پھینک دیتے ہیں۔ جو بندہ بھی ان کو چھیڑتا ہے، جو بندہ بھی اس کو ہاتھ لگاتا ہے، تو اس سے یہ جادو جو ہوتا ہے اس بندے کے اوپر حملہ آور ہو جاتا ہے، کیونکہ روحانی علوم کے ذریعے جب آپ جادو کی کاٹ کرواتے ہیں، جادو کو ختم کرواتے ہیں، تو جادو کے جراثیم بالکل جل جاتے ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رہتی کہ اب وہ کسی دوسرے بندے کے اوپر جا کر اٹیک کرے، کیونکہ جادو خود ایک منحوس شے ہے، اور منحوس شے سے منحوس شے کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ پیٹی بھائی ہوتے ہیں، تو اس کی یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایک دوسرا راستہ دے دیتے ہیں، اس کو دوسرا ایک نشانہ دے دیتے ہیں، ایک معصوم کی جان جو ہے، ایک انسان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دیہی علاقہ جات میں خصوصاً اور نہروں کے کنارے کے اوپر یا ایسے زرعی رقبے جہاں ہوتے ہیں، وہاں درختوں کے اوپر کچھ تعویذ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان لٹکے ہوئے تعویذوں کے اندر بھی بعض دفعہ اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر وہ کوئی بندہ تعویذ کھول لے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال ہمارے علاقے میں ایک معروف آدمی ہے، انہوں نے کہ اپنے رقبے کے اندر کسی درخت کے اوپر تعویذ لٹکے ہوئے تھے، تو اس نے کھول کے ان کو جلا دیا، کیونکہ وہ ان چیزوں کے اوپر اتنا بلیو بھی نہیں کرتے تھے۔ تو جو ہی جلایا، اس سے کچھ عرصے کے اندر اندر، یعنی ہفتے کے اندر یا مہینے کے اندر، بلکہ مہینے سے کم، ہفتے ڈیڑھ کے اندر اندر اس کی طبیعت کے اوپر اتنا گہرا اثر پڑا کہ آج تک وہ چارپائی پر ہے۔ یہ اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں، بہت زیادہ اس کے غلط اثرات ہوتے ہیں۔ جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ اس کو نہیں چھیڑیں۔ دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے، ہم نماز میں اندر سستی ہوتی ہے، حفاظت کے اعمال کے اندر سستی کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر ان چیزوں سے پنگے بھی لے رہے ہوتے ہیں۔ جب آپ ان چیزوں سے پنگا لینے کی کوشش کریں، کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے، مسنون اعمال آپ کرتے ہوں، آپ کے پاس حفاظت کے
मजबूत अमाल आपके पास होने चाहिए। और बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि आपके किचन के गलत इस्तेमाल की वजह से भी आपके ऊपर गलत असरात पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपके किचन में बचा हुआ खाना पड़ा है, तो उस खाने के अंदर ज़हर हड्डियाँ शड्डियाँ होती हैं, तो बाज़ दफ़ा लोग सुस्ती कर जाते हैं, उनको हड्डियों को रात को अलग नहीं करते, उन्हीं बर्तनों में पड़ा रहने देते हैं कि बस सुबह ही हम इनको धो लेंगे। तो हड्डी क्योंकि जिन्नात की खुराक है और हदीस पाक से ये चीज़ वाज़ेह मिलती है, साबित है, तो अब जिन्नात ज़हर अपनी खुराक लेने के लिए आते हैं और मुस्लिम जिन्नात घरों में रहते भी हैं और गैर मुस्लिम भी होते हैं जो बाज़ दफ़ा घरों में आ जाते हैं। हमारे घर के अंदर बाज़ दफ़ा म्यूज़िक चल रहा होता है, टेलीविज़न चल रहे होते हैं, इन वजूहात की वजह से भी शयातीन घर में अंदर दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। अब ये होता है कि जब वो गोश्त या हड्डियाँ पड़ी होती है, तो सुबह हम जाकर उनको फेंकते हैं, तो यकीन जानिए बाज़ दफ़ा जिन्नात जो हैं वो खुराक अपनी लेने के लिए आए हुए होते हैं और हम उसको फेंकते हैं। इसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आता है, वो फिर पकड़ लेते हैं। वो खुद बाज़ दफ़ा ऐसा सख्त किस्म का अपना असर डालते हैं कि वो जादू से भी परले दर्जे का असर चला जाता है। अब इसका इंसान पूरे घर के ऊपर, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर बहुत गलत असरात जाते हैं। आपने देखा होगा कि औरतों के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उनकी मखसूस अयाम की तारीख जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, मुंह के ऊपर दाने आना शुरू हो जाते हैं। ये क्योंकि अक्सर किचन का ताल्लुक ख़वातीन के साथ होता है और ख़वातीन ही ऐसी हरकत करते हैं, तो इन ख़वातीन को इस तरह की चीज़ें जो है भुगतना पड़ सकती हैं। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपके मुंह के अंदर नवाला जा रहा हो या आपके बेटे के मुंह में कोई नवाला जा रहा हो, कोई बंदा वो नवाला आपसे छीन ले या आपके बेटे से छीन ले, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। भले आप मुसलमान हो, भले आप नमाजी हो, तो आपको गुस्सा आएगा। ज़हर है वो भी एक मखलूक है, उनके अंदर भी एक दिल होता है, वो भी एहसासात रखते हैं, तो ज़ाहिर है उनको भी तकलीफ पहुंचती है। इसकी वजह से भी इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत गलत किस्म का असर पड़ सकता है और इस ऐसा असर पड़ सकता है कि बाज़ दफ़ा मुआलजीन, आम मुआलजीन को इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही होती और इंसान फिर गलत हाथों में चला जाता है, गलत मुआलजीन के पास चला जाता है। ऐसे मुआलजीन जो पहले से शयातीन के चेले होते हैं, वो मुआलजीन जो कुरान और सुन्नत के लिबादा तो ओढ़ते हैं, बाज़ दफ़ा कह देते हैं हम कुरान और सुन्नत के साथ इलाज करते हैं, लेकिन उनका चाल चलन, उनके वज़ा कता बज़ाहिर वो आपको इस्लामी नज़र आएंगे, बज़ाहिर वो मुसलमान नज़र आएंगे, लेकिन वो तावीज़ जब बनाएंगे तो शक्लों वाले बनाएंगे, बुत की शक्ल के तावीज़ बनाएंगे, इंसानी शक्ल के तावीज़ बनाएंगे, किसी जानवर की शक्ल का तावीज़ बनाएंगे। ऐसा बंदा जो शक्ल का तावीज़ बनाता है जिसमें किसी जानदार की या जानदार के दिखने वाली शक्ल बनती है, ऐसा बंदा खुद जादू का चेला होता है, वो शयातीन का एक हथियारा होता है, शयातीन का मोहरा होता है। ऐसे बंदे के पास अगर आप इलाज करवाने के लिए गए हैं, कोई खैर का तावीज़ लेने के लिए गए हैं, आप कोई खैर का मशवरा लेने के लिए गए हैं, अपनी अच्छाई के लिए, अपनी सेहत के लिए, अपने किसी खैर अच्छे काम के लिए तावीज़ लेने के लिए गए हैं, यकीन जानिए ये काम आपका नहूसत बढ़ जाएगा, ये चीज़ें आपके गले पड़ सकती हैं। ऐसे गलत बंदे के पास जो शक्लों वाले तावीज़ बनाता है, खुदारा ऐसे आदमी के पास बिल्कुल ना जाए, ये भी आपका एक गलत फैसला हो सकता है और ऐसा गलत फैसला हो सकता है जिसके ज़रिए ईमान के ऊपर भी डाका पड़ सकता है, जिसके ज़रिए ऐसा गलत फैसला हो सकता है जिसके ज़रिए आपकी जेब और इज़्ज़त के ऊपर भी डाका पड़ सकता है। ऐसे बंदों से हरगिज़ हरगिज़ अपना वक्त भी ज़ाया ना करें, अपना ईमान भी ज़ाया ना करें, अपनी दौलत भी ज़ाया ना करें, इनके पास बिल्कुल ना जाएँ। ऐसे बंदे के पास अपना इलाज कराएँ, ऐसे बंदे के साथ अपना मशवरा करें जो कुरान और सुन्नत के ज़रिए इलाज करता हो, जो कुरान और सुन्नत की मुकम्मल पासदारी करता हो, जो कुरान और सुन्नत के ज़रिए ही अपनी और अपने दोस्त अहबाब की फ़िक्र करता हो कि वो कुरान और सुन्नत के ज़रिए जो कुरान की महक और सुन्नत की महक के ज़रिए लोगों के इलाज करता रहता हो। ऐसे बंदे के पास जाइएगा, ऐसे बंदे के पास हरगिज़ ना जाए। जो बंदा आपके अकीदे, आपकी दौलत, आपकी इज़्ज़त के ऊपर हमलावर हो सकता है, ऐसा बंदे के पास बिल्कुल ना जाना चाहिए। अब ये है कि ऐसे फैसले अगर सरज़द हो चुके हैं, आपने मिसाल के तौर पे किसी रास्ते में ऐसी पड़ी हुई चीज़, दरख्तों के ऊपर लटकी हुई चीज़ या ऐसा तावीज़ ले लिया है जिसके ऊपर शक्ल बनी हुई है, ऐसे काम आपसे अगर सरज़द हो चुके हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? उसके लिए भी मैं आपको एक बेहतरीन हल बता देता हूँ, ये कर लें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। सबसे पहला काम ये करें कि ऐसे तावीज़ अगर घर में पड़े हैं, उनके ऊपर पहले पढ़ाई करनी है, सूरत फलक और सूरत उन्नास।
इनको आपने 41 मरतबा पढ़ लेना है, फिर इनको किसी नहर वगैरह के अंदर फेंक दें या किसी ज़मीन के अंदर दफन कर दें, ये खुद ब खुद इनका असर चला जाएगा, क्योंकि जब आप पढ़ाई करेंगे। दूसरा ये है कि अगर आपकी ज़िंदगी के ऊपर, आपकी तबीयत के ऊपर असर पड़ चुका है, तो उसके लिए सबसे मौसर 33 आयात मंज़ल है। उन 33 आयात मंज़ल को आप सुबह शाम पढ़ें, इंशाअल्लाह आपको बहुत हद तक फ़ायदा होगा। मज़ीद ये है कि हर किसी की अलग अलग अलामात होती हैं, हर बंदे की अलग अलग कैफियत होती हैं, तो यहाँ कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी अलामात या अपना मशवरा या अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इससे ये होता है कि हम आपको इस बारे में कुरान और सुन्नत के ज़रिए कोशिश करेंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि आप हमारा जादू शिकन तेल भी मंगवा सकते हैं, उससे भी आपको जादू के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। जादू की काट के हवाले से, बंदिश की काट के हवाले से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दूसरी गुजारिश ये भी करनी थी कि हमने एक वीडियो अपलोड की थी, हांडी के ज़रिए जादू की काट कैसे की जाती है, और उसमें हमने एक तरीका बतलाया था। बहुत सारे लोग राब्ता कर रहे हैं पर्सनल में, तो उनकी खिदमत में इल्तिमास ये है कि आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। ऐसे किसी बंदे के पास उस जादू की काट ना करवाइएगा जब तक वो वीडियो ना देखें। हमने उसका मुकम्मल पोस्टमार्टम किया है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मौजूद है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हर किस्म के जादू के तोड़, बंदिश की यकीनी कार और मुस्तनद कुरानी अमलियात व वज़ाइफ के लिए हमारे YouTube चैनल पीर मोहम्मद शुएब बलोच को सब्सक्राइब करें।